Hello everyone, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's analysis. In today's analysis, first of all, we will check out what are the table of contents. Here the table of contents are the very first one, Operation All Clear. ये हम cover करेंगे जो कि भूटान ने किया था, क्या है ये, वो सारी चीज़ें समझेंगे. फिर आता है Project Cheetah, AGAMS and Taiwan, Malacca, blockade and India's options with this thing कि इंडिया के क्या options है अगर ताइवान से related कुछ होता है, मलक्का blockade हो जाती है तब इंडिया के पास क्या options रहते हैं. अगम से related some news we had covered quite I guess around in July or August we had covered and in September month also we had covered this thing. ठीक है. प्रोजेक्ट चीता एक साल, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है and all. So everything related to the prelims are there and obviously for the mains this is important. GS paper 2 हो गया, Project Cheetah 3, AGAMS paper 1 and Operation All Clear, this is of the prelims specific. Now this is the pre-sure. In order to be very much sure related to the prelims, in order to clear your prelims, do not forget to join the pre-sure. Okay, apart from this there are evening batch also, evening batch भी है and इसके अलावा we are running the foundation courses on the CSAT paper 2. Okay, so you can join any of these whichever you. ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंक्वायरी कहाँ पे कर सकते हैं, दिस इज द नंबर, और यू कैन सेंड ईमेल ऑल्सो एट द इंक्वायरी inquiry@the-rate-of tathastuics.com. Okay, let's get started with the very first topic, that is 1 year of Project Cheetah. Project Cheetah के 1 साल हो चुके हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ ये एक आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. दिस इज सो नाइस ना, अच्छा लग रहा है देखने में. खैर, now let's talk about over here. Okay, let's see over here. Months actually spent in wild India. वाइल्ड इंडिया, यहाँ पे आपको ये जो भी जितने भी सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है अभी हम ये देखेंगे द आर्टिकल इटसेल्फ. एक्चुअली हम सभी को एक चीज़ पता है कि कुनो नेशनल पार्क आप लोगों को पता होगा, विच इज़ देयर इन द मध्य प्रदेश. दिस इज़ वेयर यू कैन सी द कुनो नेशनल पार्क. तो कुनो नेशनल पार्क में जो है कुछ चीताज को ले करके आए थे फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर एंड इसमें से कुछ चीताज दे डाइड बिकॉज ऑफ द कॉलर. ठीक है, रेडियो कॉलर्स की वजह से विच दे वर वेयरिंग इन देयर नेक. ओके, इससे पहले भी कॉलर में ये जो पहनाते थे रेडियो कॉलर्स, so because of that the deaths were not there was no report related to that. Okay, उससे related कोई report नहीं थी, but यहाँ पर we had seen that one by one certain number of cheetahs they were dying. Later on जो रिसर्चर्स थे उनको पता चला कि ये जो कॉलर थे रेडियो कॉलर्स उसमें मैगट्स डेवलप हो गए थे जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी. Okay, a lot many cheetahs, a few of the cheetahs they died because of that. वो बाद में पता चला एंड उसके पीछे के रीज़न ये भी थे कि ये जो चीतास थे they were brought, बट इनकी ना अडेप्टेबिलिटी इंडिया में नहीं हो पाई थी क्योंकि इंडिया में उस टाइम मानसून चल रहे थे एंड मानसून से उनकी अडेप्टेबिलिटी नहीं थी. दे वर नॉट अडेप्टेड टू दिस थिंग. सो बिकॉज ऑफ दिस their body actually couldn't fight back. जो भी उनको दिक्कतें हो रही थी, the maggots or anything like that, they were not able to fight back. अपने आप को itching हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है तो they used to lick it and वो lick किए तो वो अंदर की तरफ गए and that actually started impacting their body. and इसके impact के होने की वजह से ही the things got really very bad for them, right? अब इनको जो है यहाँ पे लाने से पहले there was supposed to be certain time period which they had to actually spend over there in certain areas जो बोमास बोलते हैं. ठीक है, वो हम सभी इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे. Let's talk about this, the article. So here Project Cheetah में it has been claimed that to have achieved a short-term success on 4 counts.
50% सर्वाइवल ऑफ इंट्रोड्यूस्ड चीतास, जो भी चीतास को बाहर से लेकर के इंट्रोड्यूस कराए गए थे तो उसमें 50% जो है सर्वाइवल रेट बताया गया। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम रेंजेस, बर्थ ऑफ कर्ब्स इन दी पूनो, पूनो में जो कर्ब्स है उनकी भी बर्थ हुई है, एंड प्लस होम रेंजेस जो है वो सेटल करे गए, रेवेन्यू जनरेशन फॉर द लोकल कम्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो अचीव करी गई हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन अचीव्ड, सो दिस इज व्हाट आर द अचीवमेंट्स व्हिच हैज बीन पॉइंटेड आउट। क्लेम्स क्या है, क्लेम्स कैसे असेस करी गई हैं, एक तो सर्वाइवल के ऊपर है क्लेम करी गई, फिर होम रेंज, रिप्रोडक्शन के ऊपर और लाइवलीहुड के ऊपर। सर्वाइवल में ये जो सर्वाइवल थी, तो द टेस्ट ऑफ सर्वाइवल इज इन द वाइल्ड, कहाँ पे कि वाइल्ड में जो है वो रह पा रहे हैं कि नहीं। सो द टेस्ट ऑफ सर्वाइवल इज इन द वाइल्ड, नॉट इन कैप्टिविटी वेयर एनिमल्स आर अंडर प्रोटेक्टिव केयर। ओके, नाउ प्रोटेक्टिव केयर में नहीं बल्कि वो वाइल्ड में है और वहां पे उनकी क्या सर्वाइवल रेट है, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियाज ऑफिशियल चीता एक्शन प्लान, ऑफिशियल चीता एक्शन प्लान के हिसाब से अगर देखें तो जो मेल और फीमेल है जिनको कि लाया गया नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका की तरफ से, they were to spend 2 to 3 months in the respectively inside the bomas, 2 से 3 महीने जो है उनको बोमास में रखने थे। बोमास क्या थे, एनक्लोजर्स थे जिसमें उनको की स्टडी करना था, लोग उनको जो है वो देखना था कि वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं, वो किस तरीके से अडाप्ट कर रहे हैं, एंड द वेरियस अदर काइंड ऑफ थिंग्स, द प्रे वर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो सारी स्टडी करनी थी इनको वाइल्ड में रिलीज करने से पहले। ओके, Now in the 12 months since they arrived in India in September 2022, September 2022 में आए थे, 12 महीने हो गए इनको जो है for particular time period they were supposed to be there, but उस time period के लिए ये नहीं रखे गए बल्कि उससे कम time period के लिए जो है यहाँ पर ये जो है वहाँ पर रहे। Okay, so the 8 cheetah imports from Namibia should have spent cumulative 75 cheetah months in the wild. अगर जो है 8 के हिसाब से देखें तो उनको 75 चीता मंथ्स जो है वो उनको वहां पर रहना चाहिए था, ठीक है, they were supposed to be there. However, in reality they spent just about 60 cheetah months outside the bomas, ठीक है, 75 रखने चाहिए थे लेकिन बोमस के बाहर ये 16 चीता मंथ्स ही रहे। तो यहाँ पर जो नंबर्स जो है वो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि काफी कम है। तो मतलब जो टारगेटेड टाइम पीरियड था वो ना करके उन्होंने कम पीरियड ही रखा। इन रियलिटी दे स्पेंट नॉट इवन 11 चीता मंथ्स इन द वाइल्ड, दे वर सपोज्ड टू बी देयर इन द वाइल्ड फॉर 75 चीता मंथ्स, ओके, लेकिन सिर्फ 11 चीता मंथ्स जो है वही रहे, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करी गई थी कि इस हिसाब से जो है इनको वहाँ पे रहने देना है, बट वो सारी चीज़ें ना करके बाद में जो है वो चेंज होने लगे, सारे जो फैक्ट्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें चेंज करने लगे। इसके बावजूद प्रोजेक्ट में जो है 40% ऑफ इट्स फंक्शनल अडल्ट पॉपुलेशन जो थी वो इनकी कम हो गई, दे लॉस्ट इट, एंड ऑफ 20 कैट्स 20 में से 20 जो यहाँ पर आए थे इसमें से 6 की डेथ हो गई, इसके नाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एंड जो 2 थे दे वर अनफिट फॉर द वाइल्ड, बिकॉज उनको जिस हिसाब से अडेप्ट कराना था, जिस तरीके से सारी चीज़ें करनी थी वो सारी चीज़ें ना हो पाई, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, दे पेरिश्ड, they died because of that. 4 cubs were born in India, 3 of which died and the 4th is being raised in captivity. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो 4 कब्स थे वो इंडिया में पैदा हुए, लेकिन बेचारे उन 4 में से 3 जो है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा ना, द कब्स वर बॉर्न, ठीक है, बर्थ ऑफ कब्स इन कूनो, लेकिन उसमें से 4 में से 3 तो है उनकी डेथ होगी, और इनकी जो बर्थ हुई थी दैट ऑल्सो हैपेंड इन द कैप्टिविटी इटसेल्फ। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि वाइल्ड में उनका नेचुरली जिस तरीके से चीज़ें होनी थी वैसा कुछ भी नहीं था। खैर, होम रेंज में देखें तो सिर्फ 3 चीता दे एक्चुअली स्पेंड मोर देन 3 months एट अ स्ट्रेच इन द वाइल्ड, 3 महीने से ज़्यादा समय जो है वो उन्होंने वहाँ पर स्पेंड किया था, ठीक है। इट इज़ अनलाइकली एनी ऑफ द कैट्स वुड हैव एस्टैब्लिश्ड होम रेंजेस इन दी कूनो। नाउ व्हेन इट कम्स टू द रिप्रोडक्शन का हिसाब से अगर देखा तो चीता सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस्ड इन दी वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड में जो है इन्होंने सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस किया, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ गुड थिंग विच हैपेंड।
बिकॉज दैट्स देयर नेचुरल होम इटसेल्फ, उनका नेचुरल होम है। लाइवलीहुड की अगर हम बात करें, द प्रोजेक्ट हैज इंडीड जनरेटेड अ नंबर ऑफ जॉब्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द लोकल कम्युनिटीज एंड द प्राइस ऑफ लैंड हैज अप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली अराउंड कीनो बोल रही है, आई मीन कूनो, ठीक है। अब वहाँ के आसपास की जो लैंड है, दे हैज बीन एक्चुअली सिग्निफिकेंटली increased also, the contracts for the local communities have also increased and it has actually generated the jobs also. कूनो में जो है वहाँ पर चीतास के प्रेजेंस की वजह से। कॉम्प्रोमाइजेस एंड मिस्टेक्स में देखें, the weeks after the cheetahs arrived, India abandoned its decades-old stand by abstaining at the site's vote against the trade in the elephant ivory. So this was the thing which was not supposed to be done. Maggot infestation, जो compromises and mistakes थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया मॉनसून का। तो मॉनसून की वजह से अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाई थी, तो रेडियो कॉलर में जो दिक्कतें थी उसकी वजह से these many of them died, right? Project experts had failed to factor, इन्होंने पहले जो प्रोजेक्ट एक्सपर्ट थे उनको ये नहीं लगा था कि सीजनल वेरिएशन की वजह से भी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फेयर से जो है हमने एनिमल्स अडेप्ट वहाँ से लेकर के आए, तो वहाँ का जो सिचुएशन है, एंड व्हेन इट कम्स टू द इंडिया द टेम्परेचर थिंग आर डिफरेंट, देन डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम। ओके, now the animals grew winter coats during the Indian monsoon and leading to prolonged wetness and that of the infection, because during the monsoon season हम सभी को पता है कि बहुत सारा जो है वो गीला सा मौसम रहता है, उस टाइम वेट रहता है पूरा एनवायरनमेंट, so obviously because of that infection, a lot of problems, things actually, infections, all those kind of things actually grew. The cheetah action plan जो था, इन्होंने एक्चुअली एस्टिमेट किया था that the high probability of long term cheetah persistence within populations that exceed 50 individuals, ये जो 50 individuals, they thought that we will be crossing this thing, but cheetah अब यहाँ पे क्या है कि कूनो नेशनल पार्क हमने पहले भी कवर किया था, तो उसमें हमने देखा था कि कूनो नेशनल पार्क की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा चीता वहाँ पे है। अगर ज़्यादा चीता वहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रे जो है यानी उनके जो शिकार हैं वो कम होंगे, बिकॉज दे विल बी कॉम्पिटिटिंग अमंग देमसेल्फ फॉर दीज प्रेज फॉर द फीमेल्स, राइट, फॉर द मेटिंग पर्पस एंड ऑल। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपस में लड़ाई होना, उसकी वजह से एक दूसरे को मारने की कोशिश करना, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि टेरिटरी होती है यहाँ पे। चीतल जो है वो चीता का प्राइम प्रे है कूनो में, वेयर द प्रोजेक्ट साइंटिस्ट रिपोर्टेड पर स्क्वायर किलोमीटर चीतल डेंसिटी ऑफ 5, 36, 52 एंड 69 रेस्पेक्टिवली इन दीज ईयर्स, ठीक है। पहले 5 थे, उसके बाद 36, फिर 52, फिर 69 जो है इनके नंबर्स इंक्रीज हुए चीतल, जो कि चीता के प्राइम प्रे हैं। द फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो कि 2010 में निकाली गई थी, उसमें बताया गया कि कूनो की 347 स्क्वायर किलोमीटर की जो कूनो सैंक्चुरी है could sustain 27 cheetahs and 3000 स्क्वायर किलोमीटर larger Kuno landscape could actually hold 70 to 100 animals itself, ठीक है, जिसमें से कि 27 तो चीते हैं और बाकी सब जो मतलब टोटल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो 70 से 100 जो एनिमल्स है वो हम वहाँ पर उनको रख सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया था 2020 में, द चीता एक्शन प्लान असेस्ड कूनोस चीतल डेंसिटी एट 38 पर स्क्वायर किलोमीटर विच कुड सस्टेन 21 चीतास। यहाँ पे बोला कि 27 चीतास, लेकिन यहाँ पे प्रे के हिसाब से सिर्फ 21 चीतास ही जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और 3200 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 36 हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे चीतास और चीतल मतलब उनका खाने का इंतजाम और नंबर ऑफ चीता, उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन देखने के लिए मिल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सिंगल पॉपुलेशन ऑफ 50 चीतास was no longer deemed feasible, उतना तो चीता आप रख ही नहीं सकते थे, तो पहले आपने कैसे एस्टिमेट कर लिया that the numbers will be increasing, right? So these are the kind of problem which actually happened while calculating, ये जो सारे calculations हो रहे थे उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारी जो है वो problematic issues थे।
ठीक है. नाउ द प्रोजेक्ट ओनली ऑप्शन इज अ मेटा पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. अ सोल्यूशन वुड बी टू बोरो फ्रॉम साउथ अफ्रीकन मॉडल that periodically translocates animals from one fenced reserve to another to maintain the genetic viability. हमको जो है ना साउथ अफ्रीका से सीखने की जरूरत है कि जहां पर जो है एक एक करके, ठीक है, एक एक करके जो चीजें हैं वो चेंज कर रहे थे, ट्रांसलोकेट कर रहे थे एनिमल्स को अफ्रीकन, ठीक है. बट इफ दिस असिस्टेड डिस्पर्सल बिकम्स द न्यू नॉर्मल, द केस फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट कनेक्टिविटी दैट अलाउज नेचुरल डिस्पर्सल ऑफ वाइल्ड लाइफ विल बी सीवियरली वीकेंड ऑल्सो. Okay, we are supposed to manage everything in that particular proper way. First of all, follow the best practices in the world. जो भी best practices हैं world को, वो सारी चीज़ों को study करो and accordingly you are supposed to do any kind of things in order to take the steps further. ठीक है, चलो. Now let's move on to the next topic and it is related to the Supreme Court. Supreme Court ने जो है refuse कर दिया है टेम्पल प्रीस्ट की जो प्लेस है उसको वेकेट करने से. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे डिड नॉट वेकेट और मॉडिफाइड September 25 इंटरिम ऑर्डर इशूइंग स्टेटस को ऑफ द अर्चकाशिप इन टेम्पल्स गवर्न्ड बाय द एज ओल्ड अगम्स इन द तमिलनाडु. अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पेटिशंस एक्चुअली फाइल किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको अर्चकास यानी कि प्रीस्ट के हिसाब से जो है वो टेम्पल्स में उनको लेकर के आया जा रहा है, कॉन्ट्ररी टू द अगम्स पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर ऑफ द रिचुअल नॉलेज. अब ये अगम्स एक्चुअली है क्या? अगम्स जो है एक तरीके के टेक्स्ट है जो कि जैसे कि आप देख सकते हो कि पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हाउ द टेम्पल इज सपोज टू बी बिल्ट, वेयर इट इज सपोज टू बी बिल्ट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, प्रीस्ट, व्हाट आर द प्रीस्ट एंड हाउ दे आर सपोज टू बी ट्रेन्ड, वो कैसे प्रीस्ट होने चाहिए टेम्पल्स में. सो द टेम्पल्स विच आर बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज अगम्स, ये अगम्स के बेसिस पे जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं ना उनको अगम टेम्पल्स एक्चुअली बोला जाता है. ठीक है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके के ये जो टेम्पल्स जो है यू कैन सी, राइट, तो अगम टेम्पल्स जो है उनको बोला जाता है. अब यहाँ पे देयर आर सर्टेन वेज, सर्टेन स्टेप्स. अगर आप जो है बनना चाहते हो प्रीस्ट तो आपको कुछ कंडीशंस है वो आपको फुलफिल करने होंगे. अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल कर ली है तो बहुत ही ज़्यादा आप जो है केपेबल रहेंगे वहाँ पर प्रीस्ट बनने के लिए. अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसे लोगों को प्रीस्ट बना दिया है यानी कि अर्चकशिप यानी अर्चकास बना दिए हैं जो कि एक्चुअली प्रीस्ट बनने लायक ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द अगम रिचुअल्स, राइट. सो हियर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है. ओके, अब यहाँ पे एक रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखें तो रिलीजन का मतलब ही यही चीज़ होता है दैट यू आर सपोज टू बिलीव इन दिस. अगर आप इस चीज़ में कोई भी रिलीजन हो, अगर आप उस रिलीजन में आप फेथ नहीं रखते हो, बिलीफ नहीं रखते हो, तो आप उस चीज़ को कैसे सही डायरेक्शन में उस रिलीजन के हिसाब से जो सही डायरेक्शन उस डायरेक्शन में लेकर के जाओगे. यू आर सपोज टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर थिंग, बट इफ दैट इज नॉट समथिंग विच इज बीइंग डन देन हाउ यू कैन एक्चुअली फील कि ये जो पर्सन है जो जिसको किसी तरह का कोई फेथ ही नहीं है तो उस पर्सन को क्या वहाँ का प्रीस्ट बनाना क्या सही रहेगा. हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल ही मना ही कर दी है दैट कि यहाँ पर जो है हम वेकेट नहीं करेंगे, राइट. लेकिन एक रिलीजन के हिसाब से देखें तो किसी नॉन बिलीवर को बनाना, अर्चकास बनाना, दैट आई फील दैट इज नॉट राइट एक्चुअली. तो यहाँ पे बेसिकली आपको अगम टेम्पल्स एंड अर्चकास जो थे ये टर्म्स आपको पता होने जरूरी थे रिलेटेड टू दी प्रीलिम्स. ओके, now let's move on to the next topic that is the Taiwan Malacca blockade and India's options. ठीक है, ताइवान जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द चाइना. अगर चाइना जो है उसको कैप्चर कर लेता है तो ओके, तो हियर यू कैन सी दी ताइवान. ठीक है, यहाँ पे आप ताइवान देख सकते हो एंड दिस इज दी मलक्का स्ट्रेट, दिस इज वेयर इट एक्चुअली लाइज. मैं इस आर्टिकल में आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ. अब जो ये मैक्सिमम
जो ट्रेड होती है पूरे वर्ल्ड में, इस मैप को इग्नोर करिएगा, ठीक है। नाउ जो हमारा ट्रेड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा पासेज, ऑलमोस्ट अराउंड 80% जो है वो मलक्का स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। ओके, सो दिस मलक्का स्ट्रेट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड। पूरे वर्ल्ड की अगर ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ये एक इतना इम्पॉर्टेंट अगर प्लेस है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समवन ब्लॉक्स दिस थिंग, अगर इसको जो है कोई ब्लॉक कर देता है, अगर ब्लॉक कर देगा तो फिर किस तरीके से, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, क्या जो स्टेप्स हैं वो एक्चुअली लिए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोसीड अहेड, okay, in order to proceed ahead over here. So this is a kind of matter, a kind of problem over here, and this is what this article is also talking about कि इंडिया जो है इस पर्टिकुलर थिंग में क्या कर सकता है। ओके, यहाँ पर एक और वर्ड मेंशन किया गया है, दैट इज द अंडमान सी, एंड हियर यू कैन सी द अंडमान सी, ठीक है। देखते अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड उसके पास जो है अंडमान सी है, ये साउथ चाइना सी बेसिकली है, एंड साउथ चाइना से किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। नाउ लेट्स चेक आउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। यहाँ पर कह रहा है अगर वहाँ पे नेवल ब्लॉकेड हो जाए कमर्शियल शिपिंग को लेकर के, या फिर चाइनाज की ट्रेड एंड एनर्जी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर चाइना की जो की ट्रेड और एनर्जी सी लाइंस है कम्युनिकेशन की वो ब्लॉक हो जाए, मिलिट्री एक्शन हो जाए अगर चाइनीज नेवल वेसल्स की उसके खिलाफ हो जाए थ्रू दिस थिंग, तो व्हाट आर द इश्यूज नाउ, यहाँ पर क्या क्या तरीके की जो चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, स्पेक्यूलेशंस बेसिकली बता रहा है। द फैक्ट इज दैट द कमर्शियल शिपिंग और नेवल वेसल्स जो है किसी भी कंट्री के, दे हैव द राइट, दे हैव द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द हाई सीज। अब ये हाई सीज क्या है, देखो, जब सपोज कि दिस इज इंडिया, इंडिया के कोस्टल से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो उसका एरिया है जहां तक कि इट हैज़ कंट्रोल। नाउ इसके बाहर का जो एरिया है अगर कोई और कंट्री के एरिया के अंडर नहीं आता है तो इट एक्चुअली कंसीडर्ड एज द हाई सीज। अब ये हाई सीज में जो है किसी भी तरीके का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो किसकी चलती है, UNCLOS जो है, CLOS जो है वो होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये चीज़ के ऊपर बहुत बार जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ठीक है। हाई सीज, अब ये हाई सीज को नेविगेट करने का हर एक देश के पास हक है फॉर द ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पस ऑन द एंड ऑल। जो अगर कोई नेवल ब्लॉकेड होती है कमर्शियल शिपिंग को लेकर के तो इट इज़ नॉट फीजिबल, अ नेवल ब्लॉकेड अगेंस्ट कमर्शियल शिपिंग इज एक्चुअली नॉट फीजिबल ओवर हियर। इंडियाज ऑप्शंस एंड द कंस्ट्रेंट्स, क्या ऑप्शंस है, क्या कंस्ट्रेंट है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है डिस्टेंट ब्लॉकेट्स अवे फ्रॉम अ बेलिजरेंट नेशंस ज्योग्राफी कैन बी चैलेंज्ड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। अब क्योंकि हाई सीज है तो वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो है वहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो चीज़ों को। सेकेंड है जो ट्रेस्ड पास ऑन करती है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इट इज नॉट जस्ट चाइनाज इकोनॉमिक एंड एनर्जी लाइफ लाइन, ठीक है। ये इंडिया चाइना की सिर्फ इकोनॉमिक एंड एनर्जी लाइफ लाइन नहीं है, बल्कि यहाँ से अच्छा खासा जो ट्रेड है वो जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया की भी जो है उसी स्ट्रेट से आती जाती है, फ्लो करती है। तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली फ्रॉम द चाइनाज पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम दीज कंट्रीज पर्सपेक्टिव ऑल्सो। नेक्स्ट है द थर्ड वन। थर्ड इज द चैनल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज लॉन्ग, ओके, नियरली 500 माइल्स। कितनी लंबी चैनल है, तो 500 माइल्स की जो है लंबी चैनल है, एंड इट इन्वॉल्व्स द सॉवरेनिटी ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सभी का जो है वहाँ पर एरिया आता है। एज आई टोल्ड यू ना 200 नॉटिकल माइल्स, तो इन सभी के एरियाज जो है उसके आसपास जो है एक तरीके से आते हैं, हु वुड ऑल बी अफेक्टेड एडवर्सली बाय अ नेवल ब्लॉकेड। द अफेक्टेड कंट्रीज आर अनलाइकली टू सपोर्ट अ नेवल ब्लॉकेड,
ठीक है, जो भी अफेक्टेड कंट्री है वो किसी तरीके का सपोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि नेवल ब्लॉकेड का नहीं करेगी अगर इसमें से कोई भी अफेक्टेड होती है तो। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है, कमर्शियल शिपिंग इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टू आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ द सॉवरेंटी ऑफ द वेसल। कमर्शियल है इस वजह से, क्यों, क्योंकि अब वो वेसल कहाँ की है, फ्लैग उसका रजिस्ट्रेशन का है, इंश्योरेंस का क्या सीन है, ओनरशिप कार्गो की किसकी है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, क्योंकि वेसल किसी और का हो सकता है, वो जो फ्लैग किसी और का लगा हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कहीं और की हो सकती है, कार्गो कहीं और की हो सकती है, तो देर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व रहती हैं एंड दीज आर ऑफ्टन मल्टीनेशनल इन नेचर एंड कैन ऑल्सो बी चेंज्ड एज कन्वीनियंट थ्रू द ट्रांसशिपमेंट एट एनी पोर्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, इन दी साउथ ईस्ट एशिया। ओबियसली बात है, एज आई टोल्ड यू, कहीं की भी हो सकती है, फ्लैग हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया की हो, कार्गो जो है वो यूएस की हो, यहाँ पे जो क्रू हो वो सपोज इंडिया के हो, या फिर जो इंश्योरेंस हो वो ताइवान तो नहीं, फिलीपींस की हो, मतलब कहीं की भी हो सकती है, यूएस की हो सकती है, यूके हो सकती है, तो इट इज लाइक मल्टीनेशनल इन नेचर। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट it is difficult to interdict China's trade and energy supplies। ठीक है, इंडिया मतलब चाइना की जो ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज है उसको जो है किस तरीके से इम्पैक्ट करना इज लिटिल डिफिकल्ट। एडिशनल रियलिटी इज दैट इवन इफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का आवर चोक्ड, शिपिंग कैन टेक अ detour either through the Sunda or the Lombok Straits to reach China। चाइना जाने के लिए तो ये डिफरेंट जो स्ट्रेट्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये है सुंडा स्ट्रेट यहाँ पर है, ठीक है, और लॉम्बॉक स्ट्रेट जो है दैट यू कैन सी, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट, ये वाला मलक्का स्ट्रेट हो गया, वहीं पे ही ये सुंडा स्ट्रेट हो गया और लॉम्बॉक। अब ये मलक्का स्ट्रेट अगर ब्लॉकेड होती है तो यहाँ से ना जा करके द शिप कैन गो फ्रॉम हियर टू चाइना और इट कैन गो फ्रॉम हियर to China, or it can go to China or to different countries from here itself, the South Korea and Japan it was talking about। अगर मलक्का स्ट्रेट जो है वो किसी तरीके से चोक आउट हो जाती है तो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गया, मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। किसी भी केस में अगर किसी तरीके कोई बहुत बड़ा क्रूड कैरियर्स होता है जो कि क्रूड या फिर नेचुरल गैस को कैरी करके जाता है चाइना से, तो वो कभी भी जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं यूज़ करता है, क्योंकि दैट इज़ क्वाइट शैलो एंड वो ये सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं तो इट कुड एक्चुअली टच समवेयर इन द sea or the around and it could damage the ship, so this is the reason। और ये सुंडा स्ट्रेट जो है वहाँ से होकर के चाइना जाते हैं। सिक्स्थ रीजन क्या है, चाइना भी जो है इसके पास इट हैज़ अ ह्यूज ऑन शोर एंड फ्लोटिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स विच कैन हेल्प इट टाइड ओवर डिसरप्शंस स्पेशली विद ग्रोइंग ओवरलैंड एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम रशिया एंड दैट ऑफ द सेंट्रल एशिया इटसेल्फ, राइट। सो इट विल फेस अगर डिसरप्शन होता है तो दे कैन एक्चुअली गो फ्रॉम द लैंड ऑल्सो। Naval blockade or unilateral action against an adversary's naval vessels would tantamount to a declaration of war। अगर किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई भी अगर ब्लॉकेट करता है तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इट विल बी लाइक बस अब तो शुरू हो गई लड़ाई की, वॉर होगी एट अ वेरी मिनिमम। इट कुड लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट नॉट नेसेसरीली लिमिटेड टू अ मैरीटाइम स्फेयर, okay, limited to a maritime sphere over here। China would use its permanent seat in the United Nations, obviously बात है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पे वो हमेशा अपना वीटो यूज़ कर लेता है, तो इट कुड एक्चुअली प्रोटेक्ट इटसेल्फ और एनी ऑफ इट्स फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। तो वहाँ पे जो है ये अपना परमानेंट सीट का जो है वो यूज़ कर सकता है एंड रीजनल इन्फ्लुएंस कुड बी देयर टू अफेक्ट द थॉट और ऑफ एनी सच एफर्ट। अगर किसी भी तरीके का जो है वहाँ पे चाइना को पिन पॉइंट करने की अगर कोशिश करी जाए तो इट माइट एक्चुअली डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से क्या लेसन्स है? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश ब्लॉकेड ऑफ जर्मनी विच लास्टेड फ्रॉम 1914-19
saw Germany retaliating against the British shipping on the high seas with its submarines with deadly effect. अब यहाँ पे 1914-19 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वहां पे जर्मनी जो है वो ब्रिटिश की शिप सबमरीन जो है जो कि यू बोट्स थे उसको लेकर के देवर एक्चुअली फाइटिंग, उसको लेकर के इन्होंने जो है रिटेलिएट जो है वो एक जो रिटेलिएट जो है वो एक तरीके से इन्होंने किया था, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएस हैड embargoed Japan's energy supplies which ran through the maritime commons, which probably played a key role in Japan's decision to launch the attack on the Pearl Harbor in December 1941. एंड आपको पता है कि पर्ल हार्बर पे अटैक करने की वजह से ही हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो है इन्होंने एटम बॉम्ब्स जो है वो एक्चुअली फेंके थे। द ऑनगोइंग टेंशंस बिटवीन ईरान and the US in the Strait of Hormuz are emblematic to the propositions that interdiction of even the commercial shipping can easily lead to military flare up also. So this is very obvious, यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी तरीके से सी में अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो this is very obvious thing that they will be facing, they will be creating problem over here, ठीक है। they will be actually creating a kind of problem, the war might start if anything like this actually happens, right? now जब भी अगर ईरान जो है किसी तरीके की अटेम्प्ट करता है इंटरनेशनली फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स का जो पैसेज है वहां पे अटैक करने के लिए किसी भी तरीके से, वहां पे आपने देखा होगा कि यूएस जो है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, एज यू कैन सी इवन नाउ। हालांकि किसी तरह की कोई वो ब्लॉकेट नहीं कर रहे हैं बट स्टिल यू कैन सी दैट इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस का जो हो रहा है वहाँ पे ईरान की इन्वॉल्वमेंट पता चल रही है, तो यूएस ने अपनी शिप जो है वहाँ पे लेकर के लगा दी है। So that is the there. Okay, now conflict scenarios की अगर हम देखें, there is perhaps no guarantee of support by the other stakeholders in the region, especially the Southeast Asian nations. There is no guarantee that we will be getting any kind of support from there. Or this is not necessary अगर इंडियन ओशन को लेकर किसी तरह कोई चीज़ होती है तो इंडिया की जो प्राइमरी रोल है is to proactive defense of its territorial interests. उसकी जो डिफेंस है उसको बेटर करने के लिए दे आर सपोज टू डू दैट। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दोज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के जो ईस्टर्न पार्ट में और जो वेस्टर्न पार्ट में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज द पॉइंट इज दैट अब ये जो इंडिया को एक तरीके से चाइना तो है सभी तरीके से घेर रहा है। इफ इट अटैक्स एनी हाउ देन हाउ द इंडिया इज सपोज टू रिएक्ट ओवर देयर। अभी ये देखो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे तो हिमालयाज है, वी अंडरस्टैंड दैट, ओके। अब यहाँ पे तिब्बत इज देयर विच इज अंडर चाइनाज, चाइना के अंडर ही है, ऑब्वियस सी बात है, वी नोज दिस थिंग। ये चाइना के अंडर आता है, ठीक है। अब ये चाइना के अंडर आता है तो इंडिया अब यहाँ से इनके लिए अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये यहाँ से अटैक करने की कोशिश भी करते हैं बाय एयर तो इंडिया कैन ऑल्सो अटैक फ्रॉम हियर। नाउ वाई, अब ये जो तिब्बत है दिस इज अ प्लेन रीजन, okay, mountainous है, but you can easily see it is not like lots of trees or anything like that or anything like that is actually there, it's not there, right? So obvious सी बात है, you can see that the problem, right? तो इंडिया जो है वो अच्छे से they can have a look over there and they can attack very nicely, and हमारे पास तो इस तरीके की अभी मिसाइल्स हैं जो कि यहाँ से हमने उनको जोड़े और लॉन्च किया और वो वहाँ पे जाके इस तरीके से अटैक भी कर रहे हैं 70 डिग्री पे, दे आर एक्चुअली अटैकिंग। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर, वी कैन डू दैट। सो वी आर हैविंग मिलिट्रली अगर हम देखें तो वी आर हैविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इंडिया की तरफ से फिर भी जो है एक तरीके से वी शुड कीप ऑन मेकिंग friends with the other. India's primary focus would remain on its continental borders with that of the China. Okay, a robust India with strong economy, nuclear deterrence capability and a credible military can contribute to the multipolarity in the Indo-Pacific. So all these kind of things could actually be there if we are very proactively looking at the things, ठीक है। अंडमान सी आप यहाँ पे देख सकते हो,
अंडमान, मलेशिया एंड म्यांमार के बीच में है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग, ठीक है। चलो, so this is it related to today's analysis. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Jai Hind.